नमस्कार मित्रों। तो कल रात को ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वीडियो मिला राजीव मल्होत्रा जी का, जिसमें कि वो एक्चुअली एक क्लिप है अर्नब गोस्वामी के शो की, और आगे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी के बेसिकली क्वेश्चंस क्या थे राजीव जी के लिए। तो आइए एक बार वीडियो देखते हैं पहले। I want to show you a clip of what Arnab Goswami asked me in an interview and then gave a response. Why is Harvard the focus of your book? You've dedicated a huge part of your book to Harvard. You refer to Harvard as a snake nest and say that it has unparalleled intellectual power to dismantle India. How does an institution, one university, however important, thousands of miles away, affect our country? And even though it may act as a ground for anti-India propaganda, how dangerous can it be for us? Sure. At one time it used to be Oxford during the British era, and you see what happened. Oxford trained people and they were brought into the East India Company. All the officers were trained there, and also the whole Indology throughout Europe was Oxford based, Oxford centered, many places in UK and in India. So today that role has been taken over by Harvard. So it is the center, because the Kennedy School is very powerful, probably the most powerful place where they teach politics and government and geopolitics and so on. Its influence goes into all the think tanks in the United States, and its influence goes to the US Congress. The Democrats are very proud that they are products of Harvard. Most of the top level Republicans are not. They have not much influence on the Republicans, but Harvard has a huge influence on the Democratic Party and all the think tanks from Brookings onwards. So taking on Harvard is a challenge because nobody has done it before. It's a very courageous thing to take them on and invite them to come and debate and discuss and argue. We have invited them and we hope they will accept this invitation. We'd love to come on your show. Arnab is forgetting that Harvard today is like Oxford was during the British era. Oxford produced the discourse, biased discourse, which fed the British Parliament, policy making, civil servants in India, education system in India, and all that. Harvard is doing the same thing today. Its output is what is feeding the think tanks all over the world, the prestigious universities, the schools, the US government and many other governments. For him to say that something said thousands of miles away we should not worry about, he ought to remember some lessons from history. Lord Macaulay, about 200 years ago, called for the dismantling of Sanskrit in the British Parliament and replacing with English education. And look at what has happened today. That's a lesson he ought to learn. A few decades later, Max Muller, the famous Max Muller, created this Aryan invasion theory, and based on that, the Aryan-Dravidian divide that we have to live with today in the South especially. And it's a topic of major controversy, and that is what was started by somebody thousands of miles away, and we people ignored it the way Arnab wants us to ignore what Harvard is doing. And then fast forward a few more decades, Lord Risley, all these things happened in the 1800s. Lord Risley created what became a fixed hierarchical caste system when previously it was very flexible. And again, at that time, there weren't people questioning all that in terms of its consequences, because there were many Arnab Goswami types saying, oh, how does it matter? Who cares? Well, today we do care. Also in the 1800s, until the 1800s, Sikhi, which is what later became known as Sikhism, but Sikhi, which is what the Sikhs call it, was a panth within the Hindu Dharma. Panth means path. It was one of the paths within the Hindu Dharma. There's plenty of evidence of that. A lot of good Sikh scholars have written about it. So it is in the 1800s that the British decided to distort it and call it a separate religion with the help of some Sikhs themselves, and look at the consequences of that, including the Khalistan movement. Regarding the claim that if it's far away, it shouldn't affect us, it doesn't. What starts at Harvard doesn't stay at Harvard. The Indian government recently invited European and American Ivy Leagues to set up campuses in India with no restrictions on what they'll teach, with no restrictions on who they'll hire. So you can imagine pretty soon you'll have people like Audrey Truskay and many others like that
on the payroll in Indian campuses run by the Ivy Leagues, paying their higher salaries and attracting the cream of Indians to teach. So they'll be bringing their curriculum, their knowledge right into India and teaching our elite students for the next generation. That is what happens when you ignore the long-term consequences of creating the discourse and letting somebody else set that discourse. I wonder if Arnab is only focusing on short-term latest sensation and not able to look at what are the long-term issues with far greater consequences. So, इस तरह का क्वेश्चन अर्नब गोस्वामी से आना एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ही निराशा का विषय है, क्योंकि बात क्या है ना कि इस तरह से सोचने में या ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग आपको करते हुए मिलेंगे, इसमें उनका इंटेंट गलत नहीं है, उनको सच में ये लगता है कि ये सब चीज़ें हमें कहाँ से अफेक्ट करेंगी, क्यों हमें इन सब बड़ी बड़ी बातों में पढ़ना है, आज क्या हो रहा है, हमारी लाइफ पे क्या असर है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम आजकल ऐसा हो गया है कि हम लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाते हैं। लिटरली नोबडी इज थिंकिंग ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑल्सो। लोग अपनी आज हमारी लाइफ में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, इसी बेसिस पे लोग किसी भी चीज़ को आजकल इवैल्यूएट करने लगे हैं। इनफैक्ट मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी तरह से बात करते हैं कि आज कुछ गलत हो गया है क्या, तुम किसी चीज़ का विरोध क्यों कर रही हो, किसी व्यक्ति का विरोध कर रही हो या उसकी सोच का विरोध कर रही हो, तो क्या आज तुम्हें उसने कुछ नुकसान पहुंचाया या अभी कुछ नुकसान हुआ, पिछले साल भर में कुछ हुआ या अगले 2 साल में कुछ नुकसान होने वाला है तुम्हें उससे। तो बात यह है कि ऐसे में आपका इंटेंट कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही हो, पर जब तक आप में दूरदृष्टि नहीं होगी तब तक आपके जो चयन हैं जीवन के वो कभी सही नहीं होंगे। आप ये नहीं सोचते हैं कि आज आप जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं इन द नेम ऑफ बीइंग टॉलरेंट। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम हो गई है, इतनी इन्फीरियोरिटी भर गई है उनमें कि किसी भी तरह की बुराई को ला दीजिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, अकोमोडेटिव होने के नाम पे, ठीक है कि चलिए किसी और का लाइफस्टाइल है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लाइफस्टाइल है एक्सेप्ट करते हैं तब तक ठीक है, पर आप उसको कॉल आउट तो कीजिए, आप बुरी बात को बुरा बोल नहीं रहे हैं। सेम लॉजिक लाइक दिस वन, जैसे अर्नब बोल रहे हैं कि 1000 मील दूर बैठे हुए कुछ लोग कुछ कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें ही फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वो हमारे ही बारे में बोल रहे हैं ना, हमारे ही बारे में लॉबिंग हो रही है। सेम चीज़ जो राजीव जी ने बोली अभी कि आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे लोग आएंगे, किस तरह के लोग पढ़ाएंगे और वो जो विश्वमन करेंगे, आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में, वो तो यही सीखेंगे ना जो उनके गुरु सिखाएंगे। तो यदि आपने गुरु गलत डाल दिए हैं तो बच्चा कहाँ से सही रास्ते पर जाएगा। अच्छा, बैक टू अर्नब गोस्वामी। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम। पहले आई यूज्ड टू बी रियली अ बिग फैन ऑफ अर्नब गोस्वामी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, इनके चैनल की मुझे क्वालिटी गिरती हुई नज़र आती है। अब ऐसा हो गया है कि हर कोई इनके चैनल पर चिल्ला रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पर्सनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो डिबेट्स कराते हैं ये लोग। आपने डिबेट रखी, आप दोनों पक्षों के लोगों को बुलाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, हर आइडियोलॉजी के लोगों को बुलाते हैं, आप डिबेट रखते हैं किसी टॉपिक पर, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला आदमी मतलब वारिस पठान जैसा आदमी आप बुलाकर पैनल पर बिठा देते हैं, आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, आप नेशनल टीवी का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, रिपब्लिक टीवी जैसा चैनल जो कि भारत में कम से कम सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। वो ऐसे आतंकियों को, वारिस पठान और ओवैसी की पार्टी और ऐसे तमाम जो आतंकी सोच वाले हैं या देशद्रोह करने वाले जो तत्व हैं, आप उनको पूरा प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि जाइए आधे घंटे तक आप जो करना है करिए। तो वो आप भले उनको गालियां दें,
हर बार एंकर इनका यही करता है कि एंकर इतना खुद चिल्लाता है कि पूरा का पूरा शो एक नॉइज़ बन जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब उनको प्लेटफॉर्म दे देते हैं ऐसे देश विरोधी तत्वों को या समाज विरोधी तत्वों को, मैं कहूँ तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको सुनने वाले हैं, नो मैटर आप कितनी गाली दे रहे हैं उस आदमी को, वो आदमी फिर भी सुना जाएगा। वारिस पठान को लोग, उसके जो फॉलोअर हैं ना, वो फिर भी सुनते हैं और आप उसका एक माध्यम बनते हैं उनकी रीच बढ़ाने का। तो कम से कम ऐसी बेवकूफ़ी तो ना कीजिए। आप अगर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल हैं तो वाई डोंट यू सेट अ न्यू ट्रेंड? वो भी आप नहीं कर रहे हैं। आपके प्लान थे इंटरनेशनल जाने का, मुझे नहीं पता इनका क्या हुआ उस इंटरनेशनल प्लान का, पर इस मीडिया हाउस की रीच अभी भी इंटरनेशनल नहीं है। और मुझे नहीं पता कि ये जो इस तरह का थोड़ा आजकल सॉफ्ट बिहेवियर आ गया है, इनका भी सॉफ्ट अप्रोच आ गया है व्हेन इट कम्स टू दीज इश्यूज विच आर पेडल्ड इंटरनेशनली बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उस पर अर्नब भी सॉफ्ट होते हुए दिख जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये उनके इंटरनेशनल एक्सपेंशन का एक प्लान है जिसके लिए वो अपना अप्रोच थोड़ा और माइल्ड कर रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल ऑडियंस जो है उसको लुभा सकें। पता नहीं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपने वैल्यूज़ पर ही समझौता करने लगे हैं। हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं रॉन्ग हूँ इस बारे में, पर आप लोगों को क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।